I am going to start again chapter number 1 of civics of class 9th. Student, in the previous class you have seen why we need a democracy, okay, and you have seen some examples that shown us that being a election in the country, that country cannot be considered as the democratic country. We have seen the examples of China, Zimbabwe and Fiji, etc. We have seen that if election is held in the country, but as that party which will come in the majority and make their own government, when that government will rule, during that time if that government is not concentrating themselves on the problems of the people, means they are not considered as the democracy, because we have seen that in the democracy not only election is important, besides election people and government both have to follow the rules and regulation what has been implemented, what has been written in our Indian Constitution. Okay. Now we will know about why we need democracy by looking the argument against the democracy. Now see, we will see argument against democracy. हम देखते हैं कि कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट हमारे सोसाइटी में होता है लोगों के बीच में, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट इज इंस्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। मीन्स व्हाट? एक्चुअली इन द डेमोक्रेसी वी हैव सीन दैट there is a instability. Instability means you can say that the leaders always change. Leaders time to time change. Suppose if the leader will change, means when the new leader will come into the rule, that leader will start to do the work according to themselves, okay, or by the instruction of their members. In this way what will happen? The work what will be done by the previous government, that will be in the pending and that will not complete. कहने का मतलब कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो उसमें इंस्टेबिलिटी देखी जाती है, या लोगों के बीच में ये बातें चलती हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उनमें इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थायित्व होता है। उसका कारण ये है कि समय समय पे डेमोक्रेसी, मतलब हर 5वें साल डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्शन लीडर चेंज हो जाते हैं। और व्हेन दैट लीडर विल चेंज ना, तो वो क्या करेंगे, जब वो लीडर चेंज हो जाएंगे तो चेंज होने के बाद जब नया लीडर देश को कंट्रोल करना शुरू करेगा तो वो पिछले गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यों को छोड़कर एक नए प्लानिंग के तहत कार्य करना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि द वर्क कैन नॉट बी कंप्लीट प्रॉपर्ली इन द कंट्री। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। एक्चुअली होता क्या है कि इन द डेमोक्रेसी देयर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल कंपटीशन। मतलब कि जब इलेक्शन का समय आता है या जो लीडर्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, दे ऑलवेज मेक द कंपटीशन विद वन अनदर। वो हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ठीक है, और कंपटीशन करने का मेन मकसद है कि वो इलेक्शन को जीत जाए। एज दे विल वॉन द इलेक्शन, then as they will come into the power, after coming into the power they want to earn the money what they spent in the election. चुनाव के दौरान जो पैसे वो खर्च किए रहते हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, करप्शन बढ़ जाता है। We can see the corruption in the democracy. It leads to delay. Means in the democratic country we can find out that the government cannot take the decision in the short period of time. For taking the decision it will take a long time, so that it will delay to take the decision in the country. डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि हमेशा निर्णय को लेने में लेट हो जाता है। लेट होने का मेन कारण क्या है कि देयर विल बी अ रूम इन
that all the members will sit together and they will talk on the each and every topics related with the subject, and after that there will be a voting, okay, and then after it will be decided that rules and regulations should be made in the country or not. तो इस तरीके से क्या होता है कि काफी लेट हो जाता है, ठीक है. It leads to bad decision. कहने का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें एक बार इलेक्शन जीत जाने के बाद जो लीडर्स होते हैं दे डू नॉट केयर अबाउट द पीपल, दे डू नॉट मेक द इंटरेस्ट on the desire of the people. They made the rules and regulation according to themselves. So we can say that the decision cannot be right if the leader will not think about the people, if the leader will not consult with the people, if the leader will not think about their people. Next is it leads to corruption. Just now I have told you that during the election many leaders today, आप जानते हैं कि आप बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि चुनाव को केवल जीतना चाहते हैं टू अर्न द मनी, ठीक है. दे स्पेंड द मनी ड्यूरिंग द इलेक्शन, ओके, टू गेट द वोट ऑफ द पीपल्स, बट एज दे विल कम इनटू द पावर दे विल ट्राई टू गेट द मनी व्हाट दे हैड स्पेंट, एंड नाउ for that they made the corruption, they started to make the corruption to earn the huge amount of money. Ordinary people should not decide anything. In the democracy generally it is assumed, generally we can see a discussion against the democracy that the ordinary people cannot take the decision. Only the decision can be taken by the leaders. No, in the democracy it should not be. Actually, the decision what will be taken in the parliament that will always taken by the ordinary people, because you should know that the ordinary people cannot sit together and so that they choose their representative. But when that representative will discuss about the any rules and regulation, that leader should always think about the ordinary people, means that should be considered as the decision has been taken by the ordinary people, but we cannot find out it in the democracy. Now we are going to discuss about the argument for the democracy. अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में सोचते क्या हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू सी दैट a democratic government is better government because it is more accountable from the government. Okay, democratic government is better government because it is more accountable form of government. Democratic government एक ऐसी government है जो कि कह सकते हैं कि more accountable होती है. जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो मोर अकाउंटेबल होती है, एंड दैट गवर्नमेंट हैव रिस्पांसिबिलिटी टू डू द वर्क फॉर द पीपल्स. लोगों को कार्य करने के लिए यह गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होती है. आइए देखते हैं दो एग्जांपल्स और इसको समझते हैं कि आखिर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल कैसे होती है. तो नाउ सी, एक्चुअली वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना एंड इंडिया. In the China, what happened? In China in 1958 and 1961, in between this time, there was a great famine. वहाँ पे एक famine, मतलब भूखमरी की स्थिति आ गई, and because of that, near about 3,000 people died. 3,000 लोग चाइना में मर गए, ठीक है. लेकिन उसमें जो इंडिया थी, इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन आल्सो वेरी वर्स. उसमें भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा पुअर थी. क्यों थी पुअर, दोनों के बारे में जानते हैं. एक्चुअली चाइना की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, फिर भी वहां पे लगभग 3,000 लोग मर गए. भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, एंड एट द टाइम ऑल इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, सो दैट द नंबर्स ऑफ द रिसोर्सेज went into the Pakistan, and you know that when the Britishers give up our country, they usually exploited the India. So that क्या होगा, तो उस समय हमारे भारत में भी फेमिन जैसी कंडीशन थी, लेकिन चाइना में 3,000 लोग मर गए, जबकि भारत में मृत्यु दर थी ही नहीं. क्यों ऐसा हुआ, हम देखते हैं. एक्चुअली चाइना के बारे में आपने देखा कि इन द चाइना
एक्चुअली द गवर्नमेंट विच वाज रूलिंग एट द टाइम दैट वाज एज अ डोमिनेंट गवर्नमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या थी, एक डोमिनेंट गवर्नमेंट थी, एंड दैट गवर्नमेंट मेड द रूल्स एंड रेगुलेशन, ब्रिंग द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट गवर्नमेंट आल्सो not allowed the newspapers and media to print against the government. Okay, and second thing you can know that in the China the peoples do not have a right to ask the question from the government. अगर गवर्नमेंट कोई कार्य कर रही है तो उसके अगेंस्ट में लोगों को वहां पे अधिकार नहीं था कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके, ठीक है। और अपोजिशन पार्टी जो थी, अपोजिशन पार्टी कैन नॉट रेज देयर वॉइस in the parliament in the China. Okay, so that government which was running in the country, that government doing the work according to themselves, and that government do not take care about the peoples, so that nearly 3,000 peoples died. Now we are going to talk about the India. At the time, you know, our India got independence, and after that the economic condition of India was very worse. Okay, but as you know that at the time the peoples also suffer to get the food. Okay, उस समय भी हमारे यहाँ फेमिन जैसी कंडीशन थी, लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, लेकिन भारत में जो गवर्नमेंट उसमें बनाई गई, in India we can also see that at the time there was a democratic government, there was a democratic government, and that government focused themselves towards the people. Okay, यह गवर्नमेंट जो थी अब सबसे ज्यादा ध्यान अपने लोगों पे दे रही थी, उन लोगों को जो खाने की समस्याएं थी उन समस्याओं से उबारने के लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही थी, जिसकी वजह से, और उसमें भारत में जो मीडिया थी, मीडिया वाज आल्सो फ्री टू प्रिंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मींस मीडिया हैव अ राइट टू प्रिंट अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड द पीपल्स गॉट द राइट टू आस्क द क्वेश्चन about the work of the government, ठीक है, and Indian government took care about people, so that Indian government taken initiative in the country and providing the best kinds of facilities to the peoples. Okay, in this way what happened? In this way we can see that in India the peoples did not die and all the peoples were secure. Okay, as we have seen that in the China the government is not accountable to the people, but in India government is more accountable to the people. आपने देखा कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें गवर्नमेंट लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए या रिस्पॉन्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, बट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री government has to respond to the peoples. Okay, now next is democracy improves the quality of decision making. Improve the quality of decision making. Student, you should know that in the democratic country single people cannot take the decision, or single party cannot take the decision to the country. Actually you can take the example of our country India. भारत में क्या होता है कि भारत में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, कोई कानून बनाना होता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑल द मेंबर्स विल असेंबल्ड इन द पार्लियामेंट, एंड आफ्टर दैट लॉन्ग डिस्कशन विल बी हेल्ड, काफी लंबे समय तक डिस्कशन होता है, एंड इन दैट डिस्कशन ईच एंड एवरी पॉइंट, ऑन द ईच एंड एवरी पॉइंट द लीडर्स विल डिस्कस, मतलब हर पॉइंट पे एक लंबी डिस्कशन होती है, डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होता है, एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिसाइड दैट रूल्स एंड रेगुलेशन आर दैट लॉ कैन बी पास्ड और नॉट, उस कानून को पास किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उस लंबे डिस्कशन के बाद डिसाइड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि अगर हम बात करें तो कोई सिंगल व्यक्ति अगर डिसीजन ले रहा है तो दैट डिसीजन कैन नॉट बी राइट। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, अगर उसमें से कोई एक डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन राइट नहीं हो सकता, लेकिन अगर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं और एक डिस्कशन और डिबेट करके अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम वो डिसीजन क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो इन द डेमोक्रेटिक कंट्री यू नो दैट द ऑल पीपल्स कैन नॉट सिट टुगेदर, सारे लोग तो एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन they send their representative,
वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, एंड द नंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव विल सिट इन द रूम एंड they will make the discussion and debate, and then after that decision will be, so that rules will be made for the country, and that decision can be right, and you should know that the opposition party have a right also to ask the question, and the opposition party will also take the part in the decision making. डेमोक्रेटिक कंट्री में जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं वह भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करती हैं. ओके, तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है डेमोक्रेसी में, इसमें लेट तो होता है लेकिन जो डिसीजन आता है दैट डिसीजन विल बी राइट. नेक्स्ट, नाउ सी, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. Actually, if you will see about the India, then you will find out that in India there is a great diversity, huge diversity. हमारे भारत में अगर भारत का एग्जांपल लें तो भारत में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है पीपल्स के बीच में. We can see this diversity on the basis of language, on the basis of food, on the basis of color, okay, and we can also see a common differences on the basis of gender. We can see the differences on the basis of caste. We can see also differences on the basis of religion. तो भारत में इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं, and if everyone will start to take the decision, means that decision can bring the conflict in between the peoples. अगर सारे लोग डिसीजन अपने अनुसार लेना शुरू कर दें तो हो सकता है कि उस डिसीजंस को लेते समय लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है. ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ये विचार आ रहा है कि इफ दैट कॉन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट, देन वी हैव टू चूज अ लीडर, which leader will be very powerful, and that will make them come and they will take the decision itself. Okay, हम तो यही सोच रहे हैं कि तब तो हमें ऐसे लीडर की जरूरत है जो कि बहुत ही पावरफुल और स्ट्रिक्ट हो और वह डिसीजन ले सके और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके, इस तरीके की विभिन्नताएं जो लोग दिखाएंगे उसको समाप्त कर सके. बट इट इज पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल. Okay, because when a single ruler will start to take the decision towards the country, that decision cannot be right, and that will create the unhappiness between the peoples. Okay, that will make the anger to the peoples. उससे लोगों को क्या हो जाएगा? लोगों के अंदर क्रोध की भावनाएं आ जाएंगी. ठीक है, लोगों के अंदर अप्रसन्नता आ जाएगी उस गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, तो that will not considered as a democratic country because that government will not think about the people. Okay, so in a democratic country, the government will provide an opportunity to the peoples to remove the differences and conflicts in between themselves. वो कैसे? तो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि यह गवर्नमेंट लोगों को समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, समान अवसर प्रोवाइड करती है. ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है. इन द आईज ऑफ constitution of this country you can see that not anyone is rich, not anyone is poor. हम अगर डेमोक्रेटिक अगर भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई उच्च कास्ट का है ना कोई लोअर कास्ट का है. एवरीवन इज इक्वल, everyone is equal in front of the law, and everyone have a right to get the everyone have a right to take the decision towards the country. Everyone have a right to get the opportunity to express their desire, and if everyone will get the opportunity, then this conflict and differences will remove itself. अगर हम धर्म और जाति, रिच और पुअर और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किसी को बढ़ावा नहीं देंगे तो अपने आप विभिन्नताएं लोगों के बीच से खत्म हो जाएंगी. एंड इन दिस वे वी विल सी दैट द गवर्नमेंट विल स्मूथली रन इन द कंट्री. ओके, द गवर्नमेंट विल स्मूथली रन इन द कंट्री. Okay, democracy. Next is democracy enhance the dignity of citizens. Dignity of citizens. Student, you should know that in the democratic country, every peoples are equal. I have told you. Okay, every peoples are equal.
डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि सारे लोग समान होते हैं, ठीक है। देयर इज नॉट एनी काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज नॉट एनी काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस इन बिटवीन द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ their religion, caste and rich and the poor. Okay, and we can also not see the differences under the eyes of democracy on the basis of gender. Everyone is equal. Okay, सारे लोग क्या हैं? सारे लोग समान हैं, ठीक है। In the democracy, it cannot be say that only the literate people will take the decision. Okay, the literate peoples are allowed to take the part in the election. Our literate peoples are allowed to give the vote. ऐसा तो नहीं हमारे देश में। हमारे देश में चाहे वो literate person हो या illiterate person, both have got a equal right, both have got a equal opportunity. Okay, दोनों लोगों को समान अवसर, ठीक है, प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा डेमोक्रेसी में, ठीक है। और इससे क्या होता है, और कोई भी व्यक्ति अगर अमीर है तो ऐसा नहीं कह सकते कि द रीच पीपल ओनली हैव अ राइट टू टेक द डिसीजन। नो, द पुअर इन द डेमोक्रेसी आल्सो मींस द पुअर पीपल्स आल्सो हैव अ राइट टू टेक द डिसीजन। मींस दिस ब्रिंग द इक्वालिटी इन द कंट्री एंड इट इज आल्सो इंप्रूव द डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस। जो लोग पहले के समय में जो लोग अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं किए कर रहे थे, जिन लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जा रहा था, जिन लोगों को समाज से बहिष्कृत किया गया था, नाउ टुडे यू कैन सी दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज वी हैव established the democratic form of government, now that peoples also okay thinking that they are not considered as the poor or they are not considered as the untouchable. Now they are also thinking that they are a citizen of country. मतलब वो भी अब देश में अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो ट्रू डेमोक्रेसी है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू डेमोक्रेसी। इफ वी विल सी in the true democracy, then we can find out it always enhances the dignity of the citizens. Okay, next is democracy is better than the other form of government because it allows to correct its own mistake. कहने का मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये दूसरे गवर्नमेंट की अपेक्षा बहुत ही कह सकते हैं अच्छा है, ठीक है, that is better than the other form of government. अगर हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो सपोज करिए डिक्टेटर की बात करते हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट द डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, इन दैट वी कैन सी दैट द सिंगल पीपल्स हैव अ राइट टू टेक द डिसीजन टुवर्ड्स द कंट्री। एक ही व्यक्ति पूरे भारत के लिए निर्णय लेता है, ठीक है। अगर मोनार्क की बात करें तो इन द मोनार्क वी कैन आल्सो सी सिंगल पीपल हैव अ राइट टू टेक द डिसीजन। अगर वह सिंगल व्यक्ति डिसीजन ले रहा है तो दैट डिसीजन कैन बी ट्रू, इट इज नॉट गारंटेड। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि जो डिसीजन ले रहा है वो सही होगा, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में ओनली सिंगल पीपल्स डू नॉट हैव अ राइट टू टेक द डिसीजन। डिसीजन विल बी टेकन बाय द होल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ओके, ऑल द मेंबर्स विल टेक द पार्ट इन द डिसीजन। अगर हम देखें डेमोक्रेसी में तो हम क्या देख सकते हैं कि सपोज इफ एनी लॉ हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, if that is not suitable for the people, then again the government have a responsibility to make correction in the law. Okay, दोबारा उसमें करेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि that government will not think about themselves, that government will think about their peoples. अगर कोई कानून पास हुआ है और उस कानून के द्वारा लोगों को दिक्कत हो रही है तो गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, करेक्शन करती है, उसमें सुधार कर सकती है, ठीक है। बिकॉज इन द डेमोक्रेसी पीपल्स हैव अ राइट टू मेक द कंपेरिजन, टू मेक द प्रोटेस्ट। जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जहां पे आप मोनार्की कह सकते हैं या डिक्टेटरशिप कह सकते हैं गवर्नमेंट है, वहां पे पीपल्स डू नॉट हैव अ राइट टू आस्क द क्वेश्चन एंड मीडिया आल्सो डू नॉट हैव अ राइट टू print against the government, so that how government will know what rules and regulation has been passed by the government. Government will think that that is right because government cannot know what problem is facing by the peoples. So we can say that जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सबसे अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है, इसलिए कि उसमें अगर कोई भी मिस्टेक
डिसीजन लेने में किया गया है तो उस मिस्टेक को भी दूर किया जा सकता है. ओके, in this way we can say that democracy is not totally a good type of government. ऐसा नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पूर्ण रूप से एक अच्छी गवर्नमेंट है, बट इट इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हाउ? बिकॉज इट gave the chance to the people, okay, to take the decision. Okay, and these types of government also make a correction what mistake that government has done. Means the democratic government, in the democratic government, the government will always think about the people.